السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. LLB اسٹوڈنٹس آفیشیل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے LLB لیکچر سیریز کا آغاز کیا اور الحمدللہ آج اس سیریز کا ہمارا 5واں لیکچر ہے. اور آج کا ہمارا موضوع کانٹریکٹ ایکٹ سے ریلیٹڈ ہے، جس میں ہم وائڈ اور وائڈیبل ایگریمنٹس یا کانٹریکٹ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. ویڈیو پہ آگے بڑھنے سے پہلے میری تمام اسٹوڈنٹس سے گزارش ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ پریس کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو موصول ہو سکیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ وائڈ اور وائڈیبل ایگریمنٹس کون سے ہوتے ہیں، ان کے انگریڈینٹس کیا ہوتے ہیں، اور اس کوشچن کو ہم نے پیپر میں کیسے اٹمپٹ کرنا ہے. اگر ہمیں کوشچن یہ آ جاتا ہے لا آف کانٹریکٹ کے ایگزام میں تو اس کو ہم نے اٹمپٹ کیسے کرنا ہے. سب سے پہلے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم نے کوشچن کا آغاز جو ہے وہ انٹروڈکشن سے کرنا ہے. انٹروڈکشن میں ہم نے وائڈ اور وائڈیبل کانٹریکٹ جو ہے اس کی ڈیفینیشنز جو ہے وہ مینشن کرنی ہوتی ہیں، اور انٹروڈکشن آپ کا جو ہے وہ 5 سے 6 لائنوں کا ہونا چاہیے، کوشچن کے ویٹیج کو اور ٹائم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے. LLB کے ایگزامز میں ڈیئر اسٹوڈنٹس چونکہ ٹائم جو ہے وہ بڑا محدود ہوتا ہے، 5 کوشچن جو ہیں آپ نے 20 نمبر کے اٹمپٹ کرنے ہوتے ہیں 3 گھنٹوں میں، تو کوشچن کا ویٹیج جو ہے اور ٹائم جو ہے یہ میٹر کرتا ہے. آپ کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ 20 نمبر کا کوشچن جو ہے وہ کم از کم 35 منٹ میں آپ اٹمپٹ کر لیں. تو پہلی ہماری ہیڈنگ جو ہے وہ انٹروڈکشن کی ہے. انٹروڈکشن میں ہم نے میں نے بتایا جس طرح کہ ہم نے وائڈ اور وائڈیبل کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن کرنی ہے. میں ساتھ ساتھ ریڈنگ بھی کرتا جاتا ہوں، آپ کو بتاتا جاتا ہوں. اور یہ لیکچر جو ہے یہ آپ کے نوٹس بھی ہیں، نوٹس آپ کو جو ہے لنک میں نیچے مل جائیں گے. تو لا آف کانٹریکٹ 8072 provides a rule for commercial transaction. کمرشل ٹرانزیکشن لین دین جو ہے اس کو ہم کانٹریکٹ کہتے ہیں، اور یہ کانٹریکٹ ایکٹ میں ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ برانچ آف مرکنٹائل لا. یہ مرکنٹائل لا کی بڑی ضروری برانچ ہے، خاص برانچ ہے. کانٹریکٹ از اے لیگل arrangement between two or more parties that is enforceable at law. کانٹریکٹ جو ہے وہ 2 پارٹیز یا 2 سے زیادہ پارٹیز کے درمیان ایک لیگل ارینجمنٹ ہے، ایک لیگل ریلیشن ہے جو کہ انفورسبل بائی لا ہوتا ہے، یعنی اس پہ قانون جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے. Contract law legally binds the parties to do or not to do some particular things between the tenure of agreement. تو کانٹریکٹ لا جو ہے پارٹیز پہ کچھ حدود و قیود متعین کرتی ہیں کہ وہ کوئی اسپیسیفک کام کریں یا نہ کریں اسپیسیفک ٹائم میں. یعنی کانٹریکٹ جو ہے ایک پارٹی کے درمیان ایک وقت میں کچھ کرنے یا نہ کرنے کو ظاہر کرتا ہے. دا میجر ایلیمنٹس آف اے کانٹریکٹ اور کیا کون سے ہیں؟ آفرز ہیں، ایکسیپٹنس ہیں، اور اینڈ اٹس ایمس از ٹو کریٹ لیگل ریلیشن اینڈ کنسیڈریشن. تو یہ اس کے جو ایلیمنٹس ہیں، سب سے پہلے آفر ہوتی ہے، ایک پارٹی جو ہے دوسری کو آفر کرتی ہے، دوسری اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. دین ان کے درمیان ایک لیگل ریلیشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. کس کے عوض؟ کنسیڈریشن کے عوض، کہ دونوں ایک دوسرے سے فائدہ لیتے ہیں. کنسیڈریشن کو ان سورٹ آف منی بھی آپ لے سکتے ہیں. تو کنسیڈریشن جو ہے اس میں انوالو ہوتی ہے. یہ اس کے 4 انگریڈینٹس ہیں. دا کانٹریکٹ ایکٹ 8072 is prevail into the whole Pakistan and it does not goes against any other law of the country. یہ پورے پاکستان میں جو ہے یہ اس کا اطلاق ہے اور یہ کسی بھی قانون کے اگینسٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگلی ہماری ہیڈنگ جو ہے وہ ڈیفینیشن ہے، ڈیفینیشن آف وائڈ کانٹریکٹ. An agreement which is not enforceable by law is called void agreement.
जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, जिस पे कानून का इत्तलाक नहीं होता, वो हमारा वाइड एग्रीमेंट या वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। इसकी एक्सप्लेनेशन ये है, द वर्ड वाइड मीन्स नॉट बाइंडिंग इन लॉ, यानी जिस पे कानून की अमल दरामद नहीं होती, कानून अमल दरामद जिस पे नहीं होता, उसको हम वाइड कहते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट विच कांट बी इन्फोर्स्ड बाय लॉ, इवन नो पार्टी कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट वन अनदर। यानी जब कॉन्ट्रैक्ट आपका वाइड हो जाता है तो कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी के अगेंस्ट रिएक्शन नहीं कर सकती, उसके खिलाफ कोई कानूनी चाराजोई नहीं कर सकती। नेक्स्ट है रीजंस ऑफ वाइड कॉन्ट्रैक्ट, कि इसकी रीजंस क्या होती हैं। सबसे पहली रीजन है व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल फ्रॉम द मोमेंट इट इज मेड, कि जब इसको ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिखा जा रहा है, वो उसी वक्त से जो है वो इलीगल है। फॉर इंस्टेंस, क्रिमिनल एक्टिविटी के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो इलीगल है। नेक्स्ट हमारा नंबर है कॉन्ट्रैक्ट वाज लीगल बट डिक्लेयर अनएक्सेप्टेबल बाय द कोर्ट्स बिकॉज इट वायलेट्स फंडामेंटल प्रिंसिपल, कि कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया कि ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइड है। क्यों? कि ये वायलेशन कर रहा है किसी भी कानून के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की, यानी जो कानून के मुतसादम कॉन्ट्रैक्ट है वो भी वाइड है। नेक्स्ट, इट बिकम्स वाइड ड्यू टू चेंज इन लॉ, अगर कानून में कोई तरमीम हो जाती है किसी भी किस्म की तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कर देती है। यानी वही बात जो पहले नंबर पे हमने डिस्कस की कि जो कानून से मुतसादम कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वाइड होगा। इवन इट हैज़ बीन फुली परफॉर्म्ड, और चाहे आपने उसको परफॉर्म्ड फुली किया हो तब भी जो है वो वाइड ही होगा। इसमें एक और चीज़ भी आ जाती है कि जो माइनर के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी वाइड होता है, यानी वो उस पर कानून का इतलाक नहीं होता। नेक्स्ट हमारी हेडिंग जो है वो फीचर्स ऑफ वाइड कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहला फीचर जो है ये इन्फोर्सिबल बाय लॉ है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इस पे लॉ जो है उसकी इन्फोर्समेंट नहीं होती। कंपनसेशन इन वाइड कॉन्ट्रैक्ट, कि दोनों पार्टीज जो विक्टिम पार्टी है वो कंपनसेशन जो है वो थ्रू लीगल प्रोसीडिंग ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसकी जो नेचर है वो क्या है, ये चूंकि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है, दैट्स वाई इट इज़ वाइड कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है नो लीगल राइट्स, दोनों पार्टीज के कोई लीगल राइट्स जो हैं वो मेंटेन नहीं होते। नो ऑब्लिगेशन ऑन एनी पार्टी, दोनों पार्टीज पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, वो बाइंड नहीं होते। नेक्स्ट हमारी हेडिंग जो है वो डेफिनेशन ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। पहला जो पोर्शन है हमारा वाइड कॉन्ट्रैक्ट का वो हमने डिस्कस कर लिया, उसमें हमारे वाइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन और उसके इंग्रेडिएंट्स और उसके जो फीचर्स वगैरह हैं वो आ गए। अब अगला जो पोर्शन है हमारा वो वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, उसको हम डिस्कस करते हैं। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन है एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सिबल ओनली विद द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी हु कैन कैंसिल और रिपील द कॉन्ट्रैक्ट। इसको उर्फ आम में हम काबिल तनसीह कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। यानी किसी भी मूवमेंट किसी भी वक्त वो जो स्पेसिफिक पीरियड है जिस पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है उसको उस स्पेसिफिक पीरियड के दरमियान कहीं पे भी आप उसकी तनसीह कर सकते हैं, उसको ब्रीच कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इसकी रीजंस क्या होती हैं वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की? मिस्टेक इन फैक्ट्स मेक द कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल, कि फैक्ट्स जो हैं, कोई चीज़ आपकी मिस हो गई जो आपने लिखी नहीं है, कुछ फैक्ट्स आपके जो है वो रह गए, तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइडेबल हो जाएगा, यानी काबिल तनसीह होगा। गेटिंग कंसेंट बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस मेक द कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल, अगर कोई पार्टी जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस उस पे कॉन्ट्रैक्ट पे असरअंदाज होने की कोशिश कर रही है किसी भी तरीके से, यानी जो उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद उसको फुलफिल नहीं कर रही, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइडेबल हो जाएगा। मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट बाय माइनर मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल, कोई बच्चा जो है अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो भी काबिल तनसीख है। मिस रिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल,
मिस रिप्रेजेंटेशन जो है, झूठ, फ्रॉड, उसमें आ जाना, गलत बयानी करना, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी जो हैं वो वाइडेबल होते हैं। फेलियर ऑफ परफॉर्मेंस विद इन स्पेसिफाइड मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल। स्पेसिफाइड टाइम में जो है अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल नहीं करते कोई भी पार्टी, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइडेबल हो जाएगा, यानी काबिल तनसीख होगा। नेक्स्ट हमारी हेडिंग्स है फीचर्स ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसके फीचर्स क्या हैं? इन्फोर्सिबल बाय लॉ है नहीं है, है या नहीं है। इट इज ओनली इन्फोर्सिबल बाय लॉ ऑन द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज। ये पार्टी की स्वाबदीद है कि वो उसको इन्फोर्स करती हैं या नहीं करती। कंपनसेशन इन वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, कंपनसेशन will be paid by one party to another party if any party cancel the contract। अगर वो उसको कैंसिल करती है कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफाइड पीरियड से पहले, यानी 1 साल का मुआहदा हुआ और उस मुआहदे को 1 साल से पहले जो है वो करती है, कैंसिल कर देती है, तो दूसरी पार्टी को ये पैसे देने की मजाज होगी। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? A voidable contract is a valid contract until it is avoided by the party. Once it is avoided, it becomes void। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसकी जो नेचर है, मगर पार्टी पे वही बात आ जाती है कि ये बेसिकली डिपेंड्स अपॉन पार्टी। ये पार्टी पे डिपेंड करता है। अगर तो पार्टीज जो हैं इससे अवॉइड करती हैं, मतलब इन अदर वर्ड्स जो है उसको फुलफिल करने में नाकाम होती हैं, तो ये वॉइड हो जाएगा। लीगल राइट्स जो हैं, इट प्रोवाइड्स लीगल राइट्स इन हैंड्स ऑफ बोथ पार्टीज हु कैन क्लेम दैट देयर कंसेंट हैज बीन obtained बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस एटसेट्रा। यानी लीगल राइट्स जो हैं दोनों पार्टीज के इसमें obtain हो सकते हैं। वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी। The contract is voidable at the option of one party whose consent become cause of void of the contract। यानी कि पार्टीज जो हैं जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वाइडेबल हो जाएगा पार्टीज के ऑप्शन पे, हुज कंसेंट, जिनकी नीयत जो है बिकम कॉज ऑफ वाइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जिनकी नीयत ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वाइड हो जाए, यानी काबिले इतलाक ना रहे, जिस पे कानून का इतलाक ना हो सके। ये इसकी 5 जो है वो फीचर्स हैं। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल्स ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है कि वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं। एग्रीमेंट विद द पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंडेड, यानी जो पागल इंसान है, अनसाउंडेड माइंडेड है, उसका जो एग्रीमेंट है वो वाइडेबल होगा उसके साथ जो है। एग्रीमेंट अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस में जो एग्रीमेंट होगा, यानी जिसमें एक पार्टी जो है दूसरी पार्टी पे असरअंदाज होने की कोशिश करती है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है ये वाइडेबल होगा। एग्रीमेंट बेस्ड अपॉन फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन, जो फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के साथ एग्रीमेंट किया जाएगा वो वाइडेबल होगा। एग्रीमेंट विद द माइनर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। माइनर का जो माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो भी वाइडेबल होगा। तो ये हमारी 8 हेडिंग्स जो हैं ये कंप्लीट हुई। नेक्स्ट और आखिरी हेडिंग हमारी जो है वो डिफरेंस बिटवीन वाइड एंड वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्यों हमने वाइड और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको डिस्कस करना था और उसका डिफरेंस जो है उसको हमने मेंशन करना था। तो डिफरेंस जो है इसमें आपने इसी तरह हेडिंग्स जो हैं ये बना लेनी है पेपर में। आप इस तरह भी बना सकते हैं, दरमियान में लाइन लगा के भी वाइड और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और उनके फीचर्स जो हैं उनमें मेन जो की डिफरेंसेस हैं वो लिख सकते हैं। सबसे पहले एज टू इन्फोर्सबिलिटी, अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट इज एनफोर्सिबल, अ वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सिबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी। ठीक है जी, जो वाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है वो इन्फोर्सिबल नहीं होता, इज नॉट इन्फोर्सिबल, सॉरी। और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इन्फोर्सिबल होता है और ये ऑप्शन होती है पार्टी की, यानी उनकी स्वाबदीद है। एज टू कंपनसेशन, इन वाइड कॉन्ट्रैक्ट कंपनसेशन कांट बी पेड, कंपनसेशन में बी पेड इन वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइड में जो है कंपनसेशन पेड नहीं होती और कंपनसेशन पेड होती है वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में। लीगल इफेक्ट्स इसके क्या हैं? अ वाइड कॉन्ट्रैक्ट हैज नो लीगल इफेक्ट्स, इसके कोई लीगल एस्पेक्ट्स नहीं है। अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लीगल एस्पेक्ट रखता है मगर पार्टीज की स्वाबदीद पे। ये भी
As to objection, a void contract, no party claims his objection against other party. In voidable contract, each party can claim his objection against other party. और टाइम फैक्टर जो है वो इन्वॉल्व होता है या नहीं होता. वाइड कॉन्ट्रैक्ट इज इनवैलिड फ्रॉम द मोमेंट इट इज क्रिएटेड. अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड टिल द टाइम इट इज अवॉइडेड. टाइम फैक्टर जो है वो उसमें इन्वॉल्व होता है वाइडेबल में और वाइड में नहीं होता. सो डियर स्टूडेंट्स, ये आज की हमारी जो है वो वाइड और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पे डिस्कशन थी. और आखिरी जो हेडिंग हमारी जो है वो कंक्लूजन है. कंक्लूजन में आपने जो सारा जो लिखा, जो आपने डिस्कस किया, उसका निचोड़ होता है कि हमने एंड पे जो है सारा कंक्लूजन हमने कंक्लूड करके क्वेश्चन को लिख दिया कि कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज बाय विच राइट्स कैन बी एक्वायर्ड बाय पार्टीज. A void contract is not enforceable by the law due to failure of fulfillments required by law makes the such contract void. A voidable contract is enforceable by the law but only the option of the one of more parties. डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने इंट्रोडक्शन में इसकी डेफिनेशन लिखी और इसके फीचर्स लिखे, इस तरह कंक्लूजन में भी आपने इस तरह की 5-6 लाइनें जो हैं वो लिख देनी है और आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. डियर स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पे अख्ताम पजीर होता है. अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच.